Vaidehi Utsav. Vaidehi is the another name of Sita, the wife of Lord Rama, daughter of Raja Janak, born in the kingdom of Vaidha, symbolizes purity, devotion, strength, and grace. My friend Jyoti Gupta has participated in this exhibition, a celebration of art, culture, and tradition inspired by the grace and strength of Devi Sita, Vaidehi. We all friends went with Jyoti for her exhibition and we enjoyed a lot. Really, that was a different experience. Maithili art or Madhubani painting, it's more than art, way of storytelling, preserving heritage and experiencing spiritual devotion. Sureshwati from Haryana made this painting. The painting shows the moment when Sita appears from the womb of Mother Earth, calm, glowing, and full of grace. Her shine lights up in the sky. Flowers fall from above, and joyful sounds fill in the land of Veda. Though she is small, there is a powerful light on her face, softness and strength together. It is not just birth, but a magical moment when the earth gives her most precious gift to the world. Here's another painting shows a different side of Sita, not just as a gentle and calm, but strong and fearless. Here, she defeated Sahasra Ravan, a demon with thousand heads. This story is not from regular history. It is a symbolic idea that shows Sita's hidden power. She stands up against evil not as someone needing help but as a hero herself. It reminds us that Sita was not only a patient but also a full of strength and courage. This painting of my friend Jyoti Gupta shows the scene of Sita's Gauri Pujan before her Swayamvar. Sita is seen with her three sisters Urmila, Mandvi, and Shrutkirti visiting the temple to pray the goddess Gauri with folded hands and devotion in their hearts. They seek blessing for the good husband. The moment is peaceful and full of grace. The painting captures the beauty of sisterhood, faith, and tradition in the soft and divine way. This painting shows the scene of Mata Sita at Ashok Vatika. This is also another beautiful scene of Mata Sita. The venue of this beautiful Maithili art Vaidehi Utsav is at Civil Services Officers Institute, Vinay Marg, Chanakyapuri, and it is from 6th of May to 12th of May 2025. So we all friends hired a taxi and reached there. Everyone must visit there and enjoy the beauty of this Maithili art. We reached there and wait for our few more friends.
We entered the art gallery. It was beautiful. And the host of this was Dr. Savita Jha, who was the organizer of this event, was very lively and dynamic lady. Her keen interest in Maithili art impressed us. थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले माँ को लगाएंगे है, और माँ के साथ जो माँ को यहाँ पे उपस्थित कर सके। बच्चे का नाम है ओजस्वी जी, ओजस्वी शर्मा। थैंक यू सो मच। सो ज्योति से हम आप आग्रह करेंगे कि वो अपनी पेंटिंग के बारे में हम सखियों को सबको बताएं। इसमें मैंने आप यहाँ आ जाए। सुंदर है, बहुत बढ़िया। अब जब बना रही थी ये पूरा दृश्य जो है, ये मैं बता दूँ कि 250 के आसपास बनाए गए हैं, पर ये दृश्य नहीं है, ये हमारे पास नहीं था। इसलिए जब आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनाऊं, तो मुझे लगा कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। जबकि मतलब सीता का तो प्रारब्ध है, लिखा हुआ था कि क्या होना है नहीं होना है, पर फिर भी ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडियल जो है ना, आदर्श विवाह जो है वो बॉडी का है। तो वो आदर्श विवाह की जो देवी हैं बॉडी, वो उनसे वर मांग रही हैं कि आपके जैसा ही मेरा भी विवाह हो, है ना। तो ये दृश्य बेहद इम्पोर्टेंट दृश्य है। इसका ठीक से अब आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट नोट फिर से लिखेंगी, और हम लोग इस पर थोड़ी मेहनत और करेंगे। हम लोगों ने बात की है इस पर, तो ये बहुत पावरफुल दृश्य है जिसमें कि, और दूसरी बात एक बहनापा का, जैसे आपने साड़ी जो बहने हैं हमारी, ठीक है ना, और बहुत सुंदर, मतलब जैसा बनाई है वैसा आपके जीवन में भी है। देख लीजिए, किसी को डेस्टिनी कहते हैं। हाँ, मेरे इतने मित्र नहीं है, डेस्टिनी होती है एक्चुअली में। नहीं, अब हो गए हम लोग। जी जी जी, थैंक यू। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। अच्छा, ये देखिए ये कैसे ट्रांसफर होता है। ये थे वैसे, फिर आपने बनाया तो कुछ डॉट्स हैं, राइट। तो ये जो आपने उतारा है ना, बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। इसको हम लोग और एक और सुंदर चित्र बनाएंगे, और ये बहुत डीपर है, इसमें हम लोग इसको करेंगे, इसको निवास करेंगे। और आप जो महसूस कर रही होंगी ना, जब भी कुछ बनाएं, और खासकर कितना डीपर मीनिंग का, तो उसको महसूस जरूर फील कीजिए पेंटिंग को। तो अगली बार उसमें जो एक है आर्ट, दूसरा पक्ष है कि आप कितनी स्पिरिचुअल हैं अपने आर्ट के लिए, है ना। तो वो स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, एक कलाकार आई थी, तो वो कह रही थी कि 10 महाविद्या वो बना रही थी, पर उसका अर्थ नहीं जानती थी। 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या में वो सोची कि 9 दुर्गा है और 10वीं भी दुर्गा है करके कुछ थीम है, उनको जानकारी नहीं। 10 महाविद्या एक पॉपुलर थीम मेरे ख्याल में। तो उनको किसी ने कहा और वो 10 महाविद्या बनाने लगी, लेकिन उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि 10 महाविद्या है क्या, और वो हाथ नहीं चला सकी। वो तो है, वो हाथ नहीं चला सकी, जानकारी रखनी जरूरी है। हाँ। उसके बाद वो उसको पढ़ने में गई, तो जब पढ़ने में गई तो 3 महीना बोलती नहीं थी, डीप, एकदम डीप चली गई। और
और 3 मंथ्स के बाद जब वो पूरा पढ़ करके उसमें से गंभीर होकर के निकली, तब उन्होंने ड्रॉ विस्तार से लोग बैठेंगे, वहाँ थोड़ा पानी भी पी लूँगी तब बताऊँगी। तो वैसे ही एक कथा है, ये था वुड्रो, उसका नाम था, वुड्रो विल्सन करके है। तो उसने, आप देखेंगी जब आप जाएंगी कि इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में तंत्र पे कितनी किताबें हैं, तो वो सबसे पहला लिखने वाला है वो। उसने बहुत 27-28 किताबें लिखी। वो उसने क्यों लिखी, अब उस पर आइए। वो एक जज था, तो उसको जजमेंट लिखना था, एक युवक को फांसी लगने का सीन था। तो वो डिस्कशन हो रहा था, तो वो अपनी माँ का अकेला बच्चा था जिस युवक के लिए ये सजा तय होनी थी। तो उसकी माँ जो है वो बार बार उस जज के पास, जब उसको पता चल गया कि उसकी बच्चे को मृत्युदंड मिलेगा, तो उसने बहुत अभ्यर्थना की, बहुत प्रार्थना की कि मेरा अकेला बच्चा है, मेरे पति नहीं है, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए, इसको फांसी की सज़ा मत दीजिए। तो उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी बहस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और कोई मर्सी ग्राउंड पे हम कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं है ये। तो उस महिला ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी व्यवस्था होगी, आप ये बताइए कि आप इसको फांसी कैसे देंगे। तो बोला कि कुछ नहीं, कल सुबह होगा और कोर्ट रूम में जाएंगे। बोली पूरा प्रोसेस बताइए हमको। बोली ठीक है, हाँ हम जाएंगे, कोर्ट रूम में जाएंगे, मैं आऊँगा, और अभी जो है जो लिखी हुई सज़ा जो मुकर्रर हुई है, मेरे दस्तखत होंगे उस पर, और वो पेपर जो है चला जाएगा इसमें, और ऑफिसर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको कैरी आउट करेंगे। तो फिर से पूछी, बोली कि आपका कलम चलना ज़रूरी है ना उस पर, जो फैसला है। तो बोला हाँ, यही प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से फांसी की सज़ा होगी। कुछ नहीं, अगले दिन वो जो है सुबह आकर के कोर्ट में बैठ गई सबसे आगे, और बस उस जज की तरफ देखती रही। ही कुड नॉट साइन, सिंस ही कुड नॉट साइन, वो जो सजा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, क्योंकि उसका जज का दस्तखत नहीं है उस पर। दस्तखत का तो वैल्यू है, क्योंकि उसका अप्रूवल नहीं है ना उस पर, वो अप्रूवल नहीं दे सका। उसके कितने कलम टूटे पर दस्तखत उससे नहीं हुआ। मुझे तब वो समझ गया कि आगे जो औरत बैठी हुई है वो कुछ कर रही है। तो वो समझ गया कि फिर वो जैसे 27-28 कलम टूटा, उसके पैर में गिरा वो, तुम क्या हो, मतलब क्या बात है, हमको समझाओ आप। तो तब वो बोली कि हम तंत्र जानते हैं, और आप मेरे एकमात्र बच्चे को आपसे बहुत पहले प्रार्थना की है, और आप सुने नहीं मेरी बात, तो इसीलिए हमको अपना तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ा। आप मेरे नहीं चाहने के बगैर उस कलम को नहीं चला सकते हैं, और इसीलिए आपकी कलम टूट रही है। 10वां विद्या जो है, 10वां विद्या में भी वही तंत्र है। तो इसीलिए तांत्रिक पावर का जो है, पर एक है उसके साथ कि जो उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, किसी को नुकसान करने के लिए करते हैं, उनकी शक्ति खुद चली जाती है। उसमें ये निहित है कि आप दूसरे के, समाज के, या किसी के भी आप भलाई में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी, ठीक है। मेरी मातृका वाली कोई रहती तो उसे पेंटिंग बना लेती। याद रखना तो हाँ, हमको तो लगता है कि हम प्रोफेसर से पेंटर बन गए। तो तब वो जो है उससे सीखा, उस लेडी से वो तंत्र सीखा, और उसकी जितनी वो 27-28 किताबें, उसकी तंत्र की विद्या उस स्त्री से शुरू होती है, उस माँ से शुरू होती है, और फिर वो पहला लेखक बना, ऑथर बना, जो इंग्लिश वर्ल्ड में तंत्र को इंट्रोड्यूस किया। नमस्ते, प्रणाम, हम सब वैदिक उत्सव में हैं, और आज एक खास ओकेजन है। बहुत सारी हमारी बहनें आई हुई हैं, और एक कलाकार हैं ज्योति गुप्ता हम सॉरी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सीता की सहेलियों के साथ गौरी पूजन का बनाया है, और प्रेरणा है हमारे साथ, प्रेरणा के दिखा दियो। बहुत सुंदर उनका सीता परिचय, जो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारी बहुत बहनें हैं, सखियाँ हैं, मैं उनको आकृति झा की एक खास पेंटिंग है, और ये बहुत खास कलाकार भी हैं। और एक खास बात की जिक्र मैं करना चाहूँगी यहाँ पे, कि इतनी यंग एज में आकृति के बीच के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। शी इज़ वेरी श्योर अबाउट हर आर्ट, शी इज़ वेरी श्योर अबाउट हर कॉन्सेप्ट्स। और मुझे लगता है कि अब एक नया फेज मधुबनी पेंटिंग में आना चाहिए आफ्टर कमर्शियल सक्सेस, विच इज़ द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ द आर्ट। और वो जो फिलॉसफी है आर्ट की, और आर्ट क्या कन्वे कर सकता है, उसका जो पावर है, मेरे ख्याल से खास करके ये पेंटिंग उस बात को बताने में बहुत बड़ा एक उसका एक स्पेसिमेन कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो इन्होंने एक बार पेंटिंग पे थोड़ा हम लोग फोकस कर लें, दिखा देंगे पेंटिंग को। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी खास बात है, जो कलर का जिस तरीके से उन्होंने संयोजन किया, जैसे ब्लैक और पीले को, येलो को यूज़ किया है। और तो कलर का जो वो है वो थोड़ा सा
भिन्न है। जो मधुबनी पेंटिंग में यूजुअली जो कलर इस्तेमाल होते हैं, बहुत एक स्प्लैश होता है कलर का, उसकी जगह इन्होंने सिर्फ जो है 2 कलर को चूज़ किया है। दूसरा एक अड़हुल का फूल है, और इस वैदेही की जो लिप्स हैं, जो कि ओठ है, वो नहीं है। सो ये जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक जो दिख रहा है, जो विजिबिलिटी है पेंटिंग की, वो दिख रही है। अब जो आकृति ने जो अपने शब्दों में कहा है, मैं उसको थोड़ा सा वर्बेटिम पढ़ना चाहूँगी। कि वो कहती हैं कि इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है जैसे मैं सीता को समझती हूँ, जो मिथिला की एक वॉरियर बेटी हैं, और आई हैव पोर्ट्रेड हर एज अ वॉरियर, स्ट्रॉन्ग वुमन, और स्ट्रेंथ को वैसा नहीं मानती हैं कि वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, लाइक मेन हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, और वैसा नहीं मानती हैं कि जो ताकत होती है वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से आता है। एंड शी बिलीव्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, यू नो, विच इज़ बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग। देन शी सेज दैट सीता ऑलवेज हैव बीन समवन जो अपने जन्म से लेकर के और अपने जो उनकी जब वो धरती में प्रवेश करती हैं, बहुत सारी बाधाएं और चुनौतियां उनके रास्ते में आती रहीं, पर सबको वो बहुत अच्छे से पार करती गई। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये। उसके बाद वो कहती हैं कि जो राजा जनक उनको हमेशा सपोर्ट किया, मतलब उनके पिता ने उनको हमेशा उनका साथ दिया, विच इज़ अ मैसेज टू आई थिंक ऑल द फादर्स जो सोसाइटल नॉर्म्स के बियॉन्ड जा कर के अपनी बेटी के साथ, अपनी बच्ची के साथ खड़े रहते हैं। और क्योंकि अगर पिता नहीं खड़ा रहेगा तो कौन खड़ा रहेगा, है ना। तो दूसरों से एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से गड़बड़ है। और यहाँ पे इन्होंने 6 फेसेस बनाए हैं, जिसमें ये दिखा रही हैं कि ये इन 6 चरित्रों का उनके जीवन में बहुत प्रभाव रहा। केकई को यहाँ ये दिखा रही हैं, फिर दिखा रही हैं राम को, और ऋषि वाल्मीकि, और हनुमान, फिर लक्ष्मण और धोबी। तो ये 6 पात्र को इन्होंने जैसे चयन किया है। केकई, मैं रिपीट कर रही हूँ, केकई, राम, ऋषि वाल्मीकि, हनुमान, लक्ष्मण और धोबी। तो इस तरीके से इन्होंने 6 पात्रों का, जिनका उनके जीवन पे बहुत प्रभाव रहा। दूसरा कि वो आगे लिखती हैं कि मेरी सीता के ओठ नहीं है, शी इज़ विदाउट लिप्स, विच शोज एंड्योरेंस ऑफ वुमन लिविंग स्पेशली इन मिथिला। क्योंकि इनकी जो द साइलेंट पावर ऑफ सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, वहाँ पे आप सब लोग अगर वाकिफ़ हो और थोड़ा सा सोशल मिलियू जो है, खास करके उस क्षेत्र का जहाँ से सीता आती हैं, तो एक साइलेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका है, मौन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का, स्त्री मौन ही रहे। मौन वैसे भी अच्छा समझा जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे उसको रिवाइज करना चाहूँगी कि मौन सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, मौन अदरवाइज भी जो है जीवन में उसका एक उच्च वैल्यू है, उत्तम गुण माना जाता है। जब आप हर बात पे नहीं बोलते हैं, कुछ बातों पे आप चुप भी रहते हैं, पर स्त्रियों से खास एक्सपेक्टेशन होता है कि वो यू नो, गुड वुमेन शुड नॉट बी हर्ड, दे शुड बी सीन। तो ये जो एक एक्सपेक्टेशन है, ये मेरे ख्याल से स्त्रियों पर काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके उस क्षेत्र में की जो एक सोच है, जो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें खास करके ये बात है। पर आगे ये कहती है कि जो उस सफरिंग और सेक्रीफाइस से एक साइलेंट पावर आता है। जब मौन तो है आप, या फिर आप मौन हैं, या फिर आपको मौन करा दिया गया है, पर उससे जो एक शक्ति जो आती है, वह बहुत बड़ी एक शक्ति है, साइलेंट स्ट्रेंथ जिसको वो कहती हैं। और कह रही हैं कि आज के समय में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, पेशेंस और जो इंटीग्रिटी है उनके कैरेक्टर की, वो बहुत बड़ी ताकत है, जो साधारण औरतों के लिए, हम तमाम औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके सामने आ सकती है, जो सैक्रिफाइस और हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, 2 चीज़ों से निकलता है, और जिसमें अल्टीमेटली हम मौन तो होते हैं, और उस वो मौन हमें ताकतवर बनाता है। मेरे ख्याल से अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस पेंटिंग को देखा जाए या समझा जाए, तो एक एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से मौन की, क्योंकि मौन को मुखरता ही जो है वो सब कुछ है, जो वॉइस है, रेजिंग वॉइस, voice has a lot of credential in today's world, fine, but the way this young woman has looked at silence is something incredible,
and it's totally her own idea, totally her own color combination, choices, idea, execution is completely Akriti is her own. She is only artist, or I think she is one of the artists who had told me that let me paint my Vaidehi myself. आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो आप उसको एग्जीबिशन में शामिल मत कीजिएगा। और अब मैं कहती हूँ कि आकृति के बिना अगर ये पेंटिंग नहीं होती, हम इसको किसी भी कारण से हम शामिल नहीं कर पाते, तो शायद वैदेही एग्जीबिशन वैसा नहीं होता जैसा आज है। सो उस आर्टिस्ट को, उसके इस काम को लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ आई थिंक बेस्ट विशेस टू द आर्टिस्ट। तो ऐसे ही काम करती रहें और ऐसे ही करती रहें। लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ, आई कैन डू इट फाइन। सो आई थिंक लॉट ऑफ आई थिंक अप्रिशिएशन, और आशा करती हूँ कि ये पेंटिंग समझाने में आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम सब ने तो खूब इन्जॉय किया इसको और फील किया वैदेही उत्सव को। होप आपको भी पसंद आया होगा एंड डू विजिट देयर एंड वी enjoyed a lot. Thank you for watching again.